Hello friends, welcome to Radhika Biology channel. Myself Dr. Anuradha Sharma and today we will be starting with NEET Revision 20 series. In this we will discuss 20 most expected questions from various chapters with complete explanation. So if you are new to this channel, please subscribe my channel so that we can bring similar videos from other chapters for NEET 2020. Today we will start with chapter biological classification. Here comes the first question. Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? हमारे bacterial cell में जो sticky character है कौन से component की वजह से होता है? First option is nuclear membrane, second is plasma membrane, third is glycocalyx and fourth is cell wall. So the correct answer is glycocalyx. ग्लाइकोकेलेक्स होता क्या है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोकेलेक्स आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर है सेल एनवलप की और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? ये नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेक्राइड से बना है जो कि स्टिकी कैरेक्टर देता है सेल को. सो द करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोकेलेक्स. Now second, which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? कौन सी smallest living cells है जिसमें definite cell wall नहीं है और plants and animals में pathogenic है और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकती है? Now this question is very important. आपके नीट में बार बार रिपीट हो रहा है ये कि which is the smallest living cell? So the options are Pseudomonas, second is Mycoplasma, third is Nostoc, and fourth is Bacillus. So the correct answer is Mycoplasma. Mycoplasma are the smallest living cells. सबसे छोटी living cells हैं ये. और इसकी characteristic क्या है? इसमें सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल है. सेकेंड, इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज कॉज करती है पैथोजेनिक. एंड थर्ड, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन, viroids differed from viruses in having first DNA molecules without protein code, second RNA molecules without protein code, third RNA molecules without protein code, and fourth is DNA molecules with protein code. अब हमें पता है हमारे कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं. एक होता है DNA deoxyribonucleic acid and the next is RNA that is ribonucleic acid. So हमारे वायरस जो हैं वायरसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं? The answer is RNA molecules without protein code. वायरस जो हमारे वायरस हैं वो फ्री आरएनए पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है. They consist viruses are free RNA particles that lack protein code and they are infectious agents smaller than viruses. ये ऐसे infectious agents हैं जो viruses से small हैं. So the correct answer is RNA molecules without a protein code. Now here comes the fourth question. Select the wrong statement. इन चारों स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट, cell wall is present in membranes of fungi and plantae. Second, mushrooms belongs to Basidomycetes. Third, pseudopodia are the locomotory and pairing structures in sporozoans. Fourth is mitochondria are the powerhouse of the cell. So these are four statements. पहला, cell wall हमारे fungi and plantae में, this is correct. मशरूम्स किससे बिलोंग करते हैं? बेसिडोमाइसिटीज से. माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों पावर हाउस इसको कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन एटीपी जनरेशन. सो द करेक्ट आंसर इज सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड पेयरिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स. अब हमें पता है सूडोमोटिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो होते हैं, बट क्या स्पोरोजोन्स की लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं? नहीं. सो सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं बट दे आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोन्स and examples are amoeba. So this is the wrong statement. अब हमारे ट्रिपेनोसोमा में क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं. सीलिया भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं. किस में प्रेजेंट होते हैं ये? दे आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम. So this is the wrong statement. Pseudopodia are locomotory organs and pairing structures in sporozoans. इसकी जगह अगर प्रोटोजोन्स होता तो this statement was correct. Now we can move to next question. Fifth,
ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में नहीं प्रोड्यूस होती किससे? फर्स्ट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सेकेंड इज नॉस्टॉक, थर्ड इज साइकस एंड फोर्थ इज कायरा. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. अब हमारी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डू नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज वाटर एज इलेक्ट्रॉन डोनर. Instead, they perform photosynthesis using sulfide. Therefore, they do not evolve oxygen during photosynthesis. हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये एबिलिटी होती है कि ये वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, एंड therefore they do not evolve oxygen during photosynthesis. So the correct answer is green sulfur bacteria. Now next, after karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in. पहले हमें ये पता होना चाहिए कैरियोगेमी क्या होती है. कैरियोगेमी मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक साइटोप्लाज्म में होता है, एक न्यूक्लियस में होता है. जो न्यूक्लियस में डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं कैरियोगेमी. सो आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय meiosis, spores are produced exogenously, मतलब बाहर, आउटसाइड, in Neurospora, Alternaria, Agaricus and Saccharomyces. अब द करेक्ट आंसर इज एगैरिकस, मतलब जो एगैरिकस में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सोजिनसली होते हैं. इन एगैरिकस कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? बेसिडोमाइसिटीज. बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूस 4 मियोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स व्हिच आर एक्सोजिनसली. सो एगैरिकस में क्या होता है? 4 मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि न्यूरोस्पोरा में हम देखेंगे जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं. ऑल्टरनेरिया does not produce any sexual spores, और Saccharomyces में it produces exospores endogenously. So इन चारों में अगर हम चारों में देखा जाए तो agaricus ही ऐसा है जो exogenously spores produce कर रहा है. So agaricus is the correct answer. Now next, which of the following organisms are known as chief producers in oceans? First is dinoflagellates, second is diatoms, थर्ड इज साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ इज यूग्लिनॉइड्स. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस? द करेक्ट आंसर इज डायएटम्स. डायएटम्स हमें पता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है, और हमें ये भी पता है कि फाइटोप्लैंक्टन कहाँ रहते हैं? ओशंस में रहते हैं. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए. पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, दे हैव पिगमेंट क्लोरोफिल. अब जब क्लोरोफिल है तो डेफिनेटली दे विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. सिंस दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक फूड चेन एंड मैराइन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन देम. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है क्योंकि ये ओशन में रह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, देयरफॉर दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अब पूरा मैराइन इकोसिस्टम इन्हीं पे डिपेंड करता है क्योंकि फूड चेन की वजह से. सो देयरफॉर दे आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो पूरा मैराइन इकोसिस्टम is depending on them. So the correct answer is diatoms. Next, ciliates differ from all other protozoans. Ciliates जो protozoan से कैसे differ करते हैं? First, using flagella for locomotion. Second, having contractile vacuole, free moving excess water. Third, using pseudopodia for capturing prey. And fourth, having 2 types of nucleus. इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें ciliates differ करते हैं protozoan से? So the correct answer is ciliates differ करते हैं प्रोटोजोन से किससे? Having 2 type of nuclei. ciliates में 2 तरह की न्यूक्लियाई होती है. एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और एक को कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस. एग्जाम्पल, पैरामीशियम में 2 तरह का होता है मैक्रोन्यूक्लियस. मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वेल एज ग्रोथ. और माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है? माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. सो द करेक्ट आंसर इज डी. Here comes the 9th question. In 5 kingdom classification, the main basis of classification is structure of nucleus, mode of nutrition, structure of cell wall and asexual reproduction. हमारा 5 kingdom classification दिया था R.H. Whitaker. ये साइंटिस्ट का नाम है R.H. Whitaker जिन्होंने 5 kingdom classification दिया था. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 kingdom classification किस पे बेस्ड है? तो 5 kingdom classification हमारा इन सब पॉइंट्स पे बेस्ड है. फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक.
So structure of nucleus पे नहीं है हमारा 5 kingdom classification. So the correct answer is mode of nutrition. Next, a system of classification in which a large number of traits are considered. ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेट्स कंसीडर किए गए हैं? पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड इज सिंथेटिक सिस्टम, थर्ड इज नेचुरल सिस्टम एंड डी इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम. हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर्स. हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, और जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रेट्स. सो द करेक्ट आंसर इज नेचुरल सिस्टम. द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय. हमारे जो मोटाइल बैक्टीरिया है किसके हेल्प से मूव करते हैं? फिमरिले, फ्लैजिला, सीलिया एंड पिलाई. So the correct answer is flagella. हमारे मोटाइल बैक्टीरिया में थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होती है इनके सेल वॉल पे, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला. Which of the following are likely to be present in deep sea water? डीप सी वाटर में इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, सैप्रोफाइटिक फंजाई एंड आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? हार्श हैबिटेट्स में, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज में उनको कहते हैं मैथोनोजेंस. दे ऑल लिव इन डीप सी वाटर. सो द करेक्ट आंसर इज आर्की बैक्टीरिया. Next, specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in the nostoc are. कौन सी स्पेशलाइज सेल्स हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती हैं? नोस्टॉक. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपका रिपीट हुआ है ये नीट में. फर्स्ट ऑप्शन इज एकाइनेटिस, सेकंड इज हेट्रोसिस्ट, हार्मोगोनिया एंड नोड्यूल्स. हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट लार्ज साइज थिक वॉल स्पेशलाइज सेल्स होती हैं which occur in terminal, intercalary और lateral position in filamentous cyanobacteria. हमारा जो नोस्टॉक है ये साइनोबैक्टीरिया है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें एक एंजाइम है नाइट्रोजनेज, एंड दिस एंजाइम आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये एंजाइम है जिसकी वजह से नोस्टॉक हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. सो दिस द करेक्ट आंसर इज हेट्रोसिस्ट, क्योंकि हेट्रोसिस्ट के वजह से हमारा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ next, the most important prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in the production of antibiotics are. कौन सा ऐसा prokaryote है which are helpful in making curd, दही बनाना, दूध से दही बनाने में, and production of antibiotics? पहला है cyanobacteria, second is archaebacteria, third is chemosynthetic autotrophs and fourth is heterotrophic bacteria. अब हमारा जो ऐसा प्रोकैरियोट है जो बहुत हेल्पफुल है कर्ड मिल्क से, कर्ड में एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दीज आर टर्म्ड एज हेट्रोबैक्टीरिया. और हेट्रोबैक्टीरिया का एग्जांपल कौन सा है? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है दूध को दही में. सो दिस इज हेट्रोट्रॉपिक. करेक्ट आंसर इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द एग्जाम्पल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैक्टोबैसिलस is the bacteria which is responsible for conversion of milk to curd. Next, how many organisms in the list below are autotrophs? ये लिस्ट दी गई है, इसमें से ये पूछा गया है कितने ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स हैं. ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं. अब द ऑप्शंस आर 4, 5, 6 and 3. So autotrophs मैंने बताया कौन से organism which can make their own food and which are able to make energy containing organic molecules from inorganic raw materials by using sunlight. Sunlight की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं. इसमें नोस्टॉक, कारा, परफायरा एंड वॉल्फिया, ये जो चार हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब लाइट एनर्जी यूज करते हैं. और नाइट्रोसोमास एंड नाइट्रोबैक्टेरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब they derive energy from inorganic chemicals. So total 4 plus 2 is 6. So the correct answer is 6. Next, organisms called methanogens are abundant in sulfur rock, cattle yard, polluted stream and hot spring.
जो हमें मिथेनोजेंस ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ मिलते हैं? सल्फर रॉक में, कैटल यार्ड में, पोल्यूटेड स्ट्रीम में या हॉट स्प्रिंग में। ये ऑर्गेनिजम्स इनको कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ये कहाँ पाए जाते हैं? कैटल यार्ड में एंड पैडी फील्ड। सो द करेक्ट आंसर इज कैटल यार्ड। नेक्स्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीशीज। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ये डिजीज है जो चावल में होती है, किससे होती है? ये xanthomonas, pseudomonas, alternaria and arvenia. So this bacterial leaf blight of rice is caused by xanthomonas. इसमें क्या होता है? राइस प्लांट में ये बैक्टीरिया लग जाते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट येलोइश टू ग्रेइश में टर्न हो जाता है एंड द लीफ ड्राइज अप. सो द करेक्ट आंसर इज xanthomonas. Next, one of the major component of cell wall of most fungi is, हमारे फंजाई के सेल वॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन. हमारी सेल वॉल जो है फंजाई की वो किससे बनती है? काइटिन और fungal cellulose along with other components like polysaccharides, proteins, lipids and other substances. So chitin is the correct answer. Which of the following is not correctly matched for organism and its cell wall degrading enzyme? कौन सा ऐसा सेट है जो करेक्टली मैच नहीं है? लाइक प्लांट सेल्स विद सेलुलोज, ये तो करेक्ट है. फंजाई काइटिनेज से बनता है, ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया में लाइसोसोम पाए जाते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो कौन सा ऐसा है? एल्गे मिथाइलेज. एल्गे हमारा हमें पता है प्लांट है जिसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनती है. So cellulose is needed for degradation of its cell wall. So algae methylase, this is the set which is not correct. So this is the right answer, B. Next, black rust of wheat is caused by, जो black rust होती है wheat में किससे होती है? Puccinia, Mustilago, Albugo and Phytophthora. अब हमें ये black stem rust किससे होती है? Puccinia graminis titicyi. The genus includes 700 species which cause black rust of many economic plants such as, किसमें होती है? Wheat में होती है, barley में होती है, oats में होती है. So this is the disease which is caused by Puccinia.